Hello everyone. This is Devdutt Dharyal yet again from Talent Connected Worldwide Immigrations. And today we are starting a three-part series basically on the 67-point calculation, also known as the FSWP eligibility calculation through the express entry for the Canadian PR. आज हम एक थ्री पार्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो 67 पॉइंट कैलकुलेशन जो FSWP एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन के नाम से भी जानी जाती है, एक्सप्रेस एंट्री के लिए, कैनेडियन पीआर पाने के लिए हम उसके बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में हम ये देखेंगे कि ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हेड्स हैं जिसमें कैलकुलेशन होती है। पार्ट 2 में हम इन सभी फैक्टर्स और इन सभी हेड्स के पूरे पॉइंट ब्रेकअप को देखेंगे डिटेल में और इसका एक पूरा डेमो और प्रैक्टिकल ओवरव्यू करेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करें और कैसे हम जानें कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और पार्ट 3 में हम ये जानेंगे कि ये CRS स्कोर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर है उससे कैसे अलग है, और हम आपको बोनस टिप्स भी देंगे कि आप कैसे अपने इस स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं, अपने आप को आप इनएलिजिबल से एलिजिबल कैसे कर सकते हैं। In these three parts, we are going to discuss in part 1 the introduction or the overview about the eligibility and why do we have this eligibility score, and then we will further go ahead and discuss the various heads and factors on which this calculation is done. In part 2, we will basically look at the breakup of the points under each and every heads and factors, and we will also do a practical demo of how to calculate your eligibility score. So in part 3, we will see the differences between CRS score and the eligibility score. We will also give you bonus tips on how to enhance your score and become eligible in case you are not eligible. So stay tuned, watch all 3 parts carefully and get the maximum benefit out of these 3-part series. So what is eligibility? What is the 67-point calculation? We will learn about that in this section. So eligibility क्या है, 67-point calculation क्या है, हम अब जानेंगे इस सेक्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी एक कैनेडियन गवर्नमेंट का तरीका है ये पता करने के लिए कि क्या आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उसकी एक कैलकुलेशन है पूरी, उसके फैक्टर्स हैं, वो हम सब जानेंगे। एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये ऐसे होगा कि जैसे अगर आप कोई यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे आप एक मास्टर्स कोर्स में अप्लाई करते हैं, से MA इकोनॉमिक्स, तो उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, जैसे कि आपका बैचलर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा ना हो, आपके पास बैचलर्स डिग्री पिछले 5 साल के अंदर करी हुई हो, और आपके बैचलर्स में 50% से ज़्यादा ही मार्क्स हों, तभी आप एलिजिबल होंगे। मगर एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल गया। एलिजिबल होने के बाद बहुत सारे क्राइटेरियाज को लगाकर ये निर्धारित किया जाता है कि आपको एडमिशन कोर्स में मिलेगा या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स। So I will basically, give you an example of a university admission to fit this concept of eligibility. Say, for instance, you are applying for a course called economics, masters in economics in the University of Delhi. Then the eligibility for that, applying for that course, could be that you should have studied economics in bachelor's. You should be not older than 5 years. You should have completed your bachelor's, say in the last 5 years, and you should have scored at least of a 50% marks. All these factors taken together will make you eligible if met, but it does not ensure admission into that course. What will ensure admission into that course will be a bunch of other criterias, could be a written test as well, could be how many students are applying, and many other factors. And that is how the Canadian government basically takes your application in the very first place. Now there is a lot of information, wrong information, fraudulent information, incorrect, inaccurate information in the in videos, in blog posts, so many spaces. Please understand,
The 67-point calculation is only and only limited to federal skilled worker program. It is not the deciding factor for Canadian PR. It is not the deciding factor for express entry in general. Every program has its own criteria, and this criteria is only limited to federal skilled worker program. Please remember that. ये केवल 67 पॉइंट क्राइटेरिया जो है केवल और केवल फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए ही है. इसमें और कोई प्रोग्राम इंक्लूडेड नहीं है. ये जानना बहुत जरूरी है. बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सारी गलत है. हर जगह पे इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये 67 पॉइंट क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया है. So broadly, it is only for the express entry system. Express entry system has 4 programs. Okay, the 4 programs are Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trade Program, the Canadian Experience Class, and the Provincial Nomination Program. Express entry system के अंदर 4 programs हैं. Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, Canadian Experience Class, and Provincial Nomination Program. ये क्राइटेरिया केवल और केवल फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए ही है. ये एक ब्लैंकेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एंड मेनी टाइम्स पीपल कमिट दिस मिस्टेक बिकॉज there are other programs which have other criteria and you could be probably fulfilling that, and it is not probably the end of the journey for your Canadian PR. Please remember that. So now we will discuss about the various heads or factors for calculating the 67 points or calculating the eligibility under the express entry system for federal skilled worker program. अब इस सेक्शन में हम जानेंगे कि 67 पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए या एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है और किस किस के अंडर हमको पॉइंट्स मिलते हैं. तो फैक्टर्स हैं एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी. तो हम एक एक करके सबको लेते हैं. सबसे पहले एज. एज क्यों फैक्टर है? कैनेडियन गवर्नमेंट एज को क्यों कंसिडर करता है? बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड दिस इज ऑल्सो अ फैमिली प्रोग्राम. Your contribution to the Canadian government will only be higher if you are coming to Canada in the right age. Say if you come in the age of 50, your contribution, because the retirement age is 60, is only 5 years. So the Canadian government, gives more points to the younger population, the younger applicants. तो जो भी यंग एप्लीकेंट हैं उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये सिंपल एक मैथ है जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है रिटायरमेंट एज है 60 साल या 60 इयर्स, और अगर आप 50-55 की एज में आते हैं तो आपका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, एंड देन यू बिकम अ लायबिलिटी टू द कैनेडियन गवर्नमेंट. फिर आपको आपके ऊपर सरकार को खर्चा करना पड़ेगा आपकी मेडिकल, आपकी ओल्ड एज एक्सपेंसेस पे. तो कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स कि आप पहले आइए, कंट्रीब्यूट कीजिए टू देयर इकोनॉमी, कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमी फर्स्ट, राइट? So usually if you are around 30 you get the maximum points, right? 30-35 you get the maximum points, and if you are coming in that age range, 30 से 35 साल की एज में अगर आप आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे पॉइंट्स लेते हैं, और आप रिटायर होंगे अगर 65 में तो आप 30-25 ईयर्स कुछ ऐसे कैनेडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लाइफ देंगे अपनी. The country benefits when you arrive in Canada in the right age or in a younger age, right? With a lot of enthusiasm, energy and zeal to do really well for your career and for the country, right? Then comes education. Now under this program, which is Federal Skilled Worker Program, it is skilled worker program, and with skill you need education. Say if someone says I'm a doctor and he has no education of being a doctor, right? He's not an MBBS, just I'm just treating patients. So you need education. So you are not required. This is what the government says. You need formalized education post schooling. Although it does allow for lower than graduation, but the minimum criteria usually that we say is a diploma or a graduation, to that effect, to get points. And the Canadian government gives you maximum points if you have a PhD. Right? Again, we will discuss in detail about the scoring and the various levels and the breakup of education. But then, yes, education
मिनिमम बैचलर्स या एक डिप्लोमा जो बैचलर्स के बराबर हो वो होना ज़रूरी है, और पीएचडी पे आपके मैक्सिमम पॉइंट्स बन जाते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना फॉर्मल एजुकेशन करके आए जिस ट्रेड में आप या जिस स्किल्ड ऑक्यूपेशन में आप आना चाहते हैं, राइट। और स्किल्ड ऑक्यूपेशन जो हमारी होती हैं वो हम देखते हैं हमारे तीसरे क्राइटेरिया में या तीसरे फैक्टर में या तीसरे हेड में, जिसे हम कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस। सो थर्ड वन इज द वर्क एक्सपीरियंस। द वर्क एक्सपीरियंस यूजुअली हैज टू बी अंडर द नॉक कोड्स ओ, ए एंड बी कैटेगरी, राइट। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस नॉक की जो कैटेगरीज हैं ओ, ए और बी। नॉक क्या है? नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में पूरी एक ग्रिड है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस किस किस लेवल पे आ रहे हैं। द मोमेंट वी से इट इज स्किल्ड इमिग्रेशन, दे आर नॉट लुकिंग एट जूनियर लेवल जॉब्स, दे आर लुकिंग एट पीपल हु आर सुपरवाइजर्स एंड अबव, प्रोफेशनल्स एंड अबव, हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो जब भी हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसमें आपका नॉक कोड जो है वो OAB में होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये ऑक्यूपेशन जो हैं ये सुपरवाइजरी और उसके ऊपर की हैं, ये मैनेजमेंट पोजीशंस हैं, ये प्रोफेशनल पोजीशंस हैं, ये सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस हैं। इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव लेवल या लोअर लेवल जॉब्स नहीं है, इसीलिए ये स्किल्ड इमिग्रेशन है। प्लीज रिमेंबर दैट 67 पॉइंट क्राइटेरिया में ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, लोग वर्क एक्सपीरियंस में बस ईयर्स काउंट करते हैं, बोलते हैं हो गया। नो, वर्क एक्सपीरियंस इन द रिक्वायर्ड नॉक कोड्स। Please remember that. Obviously, in the eligibility, you get the maximum points for 6+ years of work experience. And then, yes, you need to have a minimum of 1 year of continuous work experience, right? Very, very important to know. 1 साल का minimum experience required होता है, 6 साल में आपको maximum points मिल जाते हैं। तो और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि NOC code OA और B कैटेगरी में होना बहुत ज़रूरी है, otherwise you are rendered ineligible in this program, right? Then comes number 4, which is language ability. Language ability है नंबर 4 पे, और language ability क्या है? कनाडा में अगर आपको काम करना है तो आपको चारों तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, जिसे कहते हैं लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना, या और बोल पाना। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑल 4 एरियाज। तो चारों के चारों में आपकी महारत होनी चाहिए, और उसके लिए एग्जाम आपको एक देना होता है जो ज़्यादातर IELTS या सेल्फिप के एग्जाम्स आप दे सकते हैं। इसमें एक मिनिमम स्कोर होता है जो आपको अटेन करना होता है, और आप बहुत अच्छे पॉइंट दे सकते हैं अगर आप CLB 9, सब आजकल बात कर रहे हैं CLB 9 स्कोर की। CLB 9 स्कोर अगर आप लेते हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर व्हाट इज अ CLB 9 स्कोर। CLB 7 में यू आर एलिजिबल, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि लैंग्वेज एबिलिटी इंग्लिश है सबसे पहले प्राइमरी, उसके बाद अगर आपको फ्रेंच आती है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। हम जानेंगे इसके बारे में आगे चलकर इस वीडियो में कि ये कैसे इसके पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। So after language, and now the purpose of again understanding why language is taken, कि क्या एक एग्जाम है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम है और वो आप लिख रहे हैं and you score higher. No, it basically means that Canadian government has generalized or has the idea or opinion that if you are a great professional, for you to be successful, you should be a great a communicator as well. For that, you will need to have a good understanding of the language. आप समझ पाएं उनकी लैंग्वेज, आप बोल पाएं उनकी तरह, आप पढ़ पाएं और आप लिख पाएं, तभी आप एक वर्क प्लेस में सर्वाइव कर पाएंगे, एक्सेल कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक स्कोरिंग सिस्टम इसमें रखा और इसको एक क्राइटेरिया बनाया कि आप हमारे देश में आएंगे, अगर आप हिंदी में बात करेंगे या आप फारसी में बात करेंगे तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। इसीलिए इंग्लिश और फ्रेंच के ही पॉइंट्स और किसी लैंग्वेज के पॉइंट्स नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लैंग्वेज पैरामीटर। देन कम्स arranged employment, and if you have arranged employment, then definitely yes, you get some more points. Arranged employment basically is you having a job offer from an employer, a designated employer. So again, if you have a job offer, great, the government says fine, I need you, but please verify, validate and everything. The arranged employment must be as per the norms or as per the specification that I am asking. It is not कि कोई चाचा मामा आपको एक ऑफर लेटर बना के दे दे और आप उसके थ्रू चले जाएं।
arranged employment. So number 5 पे है arranged employment. So do you have arranged employment in Canada? But there is also a very important point to be taken into consideration. And why is Canadian government looking for that? कि अगर आपको कोई कंपनी बुला रही है कनाडा में, राइट, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं. यू आर मोर देन वेलकम टू अप्लाई इन द स्किल वर्कर प्रोग्राम, बट उसमें कुछ क्राइटेरिया आपको मीट करने पड़ेंगे, वरना कोई भी चाचा मामा आपको ऑफर लेटर अपनी कंपनी का दे दे तो आप स्किल वर्कर में अप्लाई आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है. The offer letter has to be genuine, it will be checked, verified, and there is a specific process for getting that. So please be aware that this is not something which can be taken as just arranging an employment there. No, you will have to really get an employment for job code which are O, A and B only. Remember that the knock code categories that we discussed about briefly back, and this is exactly आपको knock code OA B में ही ऑफर लेटर होना चाहिए, और उसका पूरा एक स्टेप वाइज क्राइटेरिया which has to be followed. So this is something arranged employment, yes, you will get points for that. मिनिमम 1 ईयर का आपका जॉब ऑफर ये होना चाहिए. और फाइनली हम आते हैं नंबर 6 पे, विच इज द अडेप्टेबिलिटी पॉइंट्स. अडेप्टेबिलिटी क्या चीज़ है? सबसे पहले एक ब्रॉड लेवल पे जानना है अडेप्टेबिलिटी क्या है. कैनेडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपका कनाडा से कोई भी कनेक्शन है, इफ यू हैव एनी कनेक्शन इन कनाडा, right, then we will give you points for adaptability. That means you will be able to adapt faster, better, and you have a better chances of adapting to the Canadian lifestyle, values and everything the country is as such. तो आपको इस चीज़ के पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे. और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर आपके स्पाउस की भी लैंग्वेज एबिलिटी के उन्होंने एग्जाम दिया है और उन्होंने एक मिनिमम बेंचमार्क को अगर मीट कर लिया तो उसकी आपको पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपने या आपके स्पाउस ने, इफ़ यू आर मैरिड, if you have done at least 2 years of post secondary education in Canada, you get points for that as well. अगर आपके स्पाउस और आपने 2 साल का कोई भी कोर्स किया हो कनाडा में आफ्टर स्कूलिंग, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपका 1 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा का, तो अगेन यू विल गेट पॉइंट्स फॉर दैट. एंड अगेन इट इज़ फॉर यू एंड योर स्पाउस. अगेन कोई वैलिड वर्क परमिट में अगर आपने काम किया हो तो, और उसके बाद अगर आपको अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स मिले तो उसमें भी आपको फिर अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट्स मिलते हैं. और फाइनली अगर आपका कोई भी, आपका या आपके स्पाउस का, इफ यू आर मैरिड अगेन, अगर कोई भी रिलेटिव है, और रिलेटिव की डेफिनेशन है कि कौन रिलेटिव है, कोई भी दूर दराज का रिलेटिव नहीं हो सकता. There is a definition of who the relative can be, and if you have a relative in Canada, you or your spouse, then you get points for that as well. So that sums up the various factors or the various heads under which the eligibility calculation is done. So eligibility calculation के यही हैं सारे heads. We have simplified all the information about the eligibility and the 67 point calculation in this video. I'm sure this is going to help you and mostly going to save you from unscrupulous elements, fraud elements, incorrect, inaccurate information floating around on YouTube, on blogs, which can probably push you down, push you back. Very, very important if you are trying for a Canadian PR to go and get help only from a certified partner like us. We at Talent Connected Worldwide are ICCRC and now CICC certified. Our RCIC number is flashing on the screen. I recommend you all to come to us in case you find any challenges in your eligibility calculation and in your filing later on. Please do come to us. We will be more than glad to help you out. अगर आपको कोई भी समस्या होती है अपनी एलिजिबिलिटी या आगे एप्लीकेशन भरने में, आप रीच आउट करें टैलेंट कनेक्टेड वर्ल्डवाइड को. हम ICCRC सर्टिफाइड, जो कि अब CICC हो गया है, हम सर्टिफाइड हैं, और हमारा RCIC नंबर अभी स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है. आप हमारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं. हम रेकमेंड करेंगे कि अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप केवल एक ऑथराइज्ड सर्टिफाइड पार्टनर के पास ही जाएं, ताकि आपको लीगल लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन मिल पाए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स और कलीग के साथ, ताकि ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके और हम आगे आपको ऐसे ही कनाडा PR से रिलेटेड, कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बना के देते रहें. इन केस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक इट, please subscribe to our channel and share it with your friends so that we can keep giving more and more information about Canada PR and Canada immigration related topics to you from time to time. Thank you so much.